Students, hope you are doing well. In this video, we will start a new chapter, chapter 10, that is reaching the age of adolescence. In this chapter, we will learn first adolescence and puberty, second changes at puberty. In changes at puberty, we will learn increase in height, change in body shape, voice change, increased activity of sweat and sebaceous glands, development of sex organs, reaching mental, intellectual, and emotional maturity. Today's third topic is secondary sexual characters. Next topic is role of hormones in initiating reproductive function. Next topic is reproductive phase of life in humans. Next topic is how is the sex of the baby determined. Next topic is hormones other than sex hormones. Next topic is role of hormones in completing the life history of insects and frogs. And today's last topic is reproductive health. So let us start from the first topic, adolescence and puberty. Growing up is the natural process, the period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence. Growing एक नेचुरल प्रोसेस है, लाइफ का वो पीरियड जिसमें बॉडी में चेंजेस होता है और ये चेंजेस रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी तक जाता है, एडोलेसेंस कहलाता है. Adolescence begins around the age of 11 and lasts up to 18 or 19 years of age. Since this period covers the teens, like 13 to 18 or 19 years of age, adolescents are also called teenagers. Adolescence लगभग 11 years से स्टार्ट होकर के 18 या 19 years तक जाता है. क्योंकि adolescence teens को कवर करता है, यानी कि 13 years से स्टार्ट होकर के 18 और 19 years तक जाता है, इसलिए adolescents को teenagers भी कहा जाता है. In girls, adolescence may begin a year or two earlier than in boys. Also, the period of adolescence varies from person to person. गर्ल्स में एडोलेसेंस 1 या 2 साल बॉयज से पहले स्टार्ट हो जाता है और पर्सन टू पर्सन एडोलेसेंस वैरी भी करता है. द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस. दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. एडोलेसेंस के एज में बॉडी में काफी चेंजेस होते हैं और इस चेंजेस को प्यूबर्टी कहा जाता है. The most important change which marks puberty is that boys and girls become capable of reproduction. Puberty के समय जो most important change होता है वो ये होता है कि boys और girls reproductive के लिए capable हो जाता है. Puberty ends when the adolescent reaches reproductive maturity. जब adolescent reproductive maturity तक पहुंचता है तो puberty खत्म हो जाता है. Now next topic, changes at puberty. First, increase in height. The most conspicuous change during puberty is the sudden increase in height. Puberty के समय सबसे important change जो होता है वो अचानक height का change होना होता है. At this time, the long bones, that is, the bones of the arm and the legs elongate and make a person tall. इस समय person का bones लंबा हो जाता है, जैसे कि arms का bone और legs का bone लंबा हो जाता है और person को लंबा बना देता है. Now activity 10.1. इस एक्टिविटी में हम लोग एक टेबल पढ़ेंगे जिस टेबल में पर्सन्स के हाइट दिए हुए हैं कि पर्टिकुलर एज में कितना परसेंट हाइट बढ़ सकता है. यहाँ एक टेबल है. इस टेबल के फर्स्ट कॉलम में एज इन ईयर्स दिया हुआ है, सेकंड कॉलम में परसेंटेज ऑफ फुल हाइट ऑफ बॉयज दिया हुआ है एंड थर्ड कॉलम में परसेंटेज ऑफ फुल हाइट ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है. लाइक 8 इयर्स के एज में बॉयज का 72% हाइट इंक्रीज करता है और गर्ल्स का 77% इंक्रीज करता है. इसी तरह से 9 इयर्स के एज में बॉयज का 75% हाइट इंक्रीज करता है और गर्ल्स का 81% हाइट इंक्रीज करता है. अब इस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग एक पर्टिकुलर एज में किसी पर्सन का क्या हाइट हो सकता है वो पता कर सकते हैं. इसके लिए फॉर्मूला है परसेंटेज हाइट इन सेंटीमीटर अपॉन परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज एज गिवन इन द चार्ट मल्टीप्लाइड बाय 100. अब एक एग्जाम्पल है, इसको देख लेते हैं. अ बॉय इज 9 years old and 120 centimeter tall. At the end of the growth period, he is likely to be. It means कि एक बॉय है जिसका एज 9 ईयर है और उसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है. कह रहा है कि इस ईयर को खत्म होने तक उस बॉय का कितना हाइट हो सकता है. तो इसके लिए हम लोग सिंपली फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर हमारा निकल जाएगा. जैसे 120 अपॉन 75 मल्टीप्लाइड बाय 100. जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 160 सेंटीमीटर होगा. इट मीन्स कि बॉय 9 इयर्स के अंत तक में 160 सेंटीमीटर टॉल हो सकता है. नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 10.2. इस एक्टिविटी में हम लोग देखेंगे कि बॉयज एंड गर्ल्स का हाइट किस तरह से वेरी करता है.
यहाँ एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ के एक्स एक्सिस में एज इन ईयर्स लिखा हुआ है एंड वाई एक्सिस में परसेंटेज ऑफ फुल हाइट दिया हुआ है। एज 8 ईयर्स से स्टार्ट होकर के 18 ईयर्स तक है और हाइट 65 से स्टार्ट होकर के 100 तक है। ये ब्लू लाइन गर्ल्स के लिए और ये रेड या पिंक लाइन बॉयज के लिए। तो हम लोग इस ग्राफ में देख रहे हैं कि गर्ल्स का हाइट 17 ईयर्स तक बॉयज से ज्यादा होता है, लेकिन 18 ईयर्स में आने के बाद बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का हाइट सिमिलर हो जाता है। ओके, यहाँ 18 ईयर्स का ग्राफ है, यहाँ देख लीजिए दोनों का सिमिलर हो गया, लेकिन इससे पहले ये बॉयज का हाइट का ग्राफ है और ये गर्ल्स के हाइट का ग्राफ है। तो गर्ल्स के हाइट का ग्राफ हमेशा ज्यादा गया है। ओके, Initially, girls grow faster than boys, but by about 18 years of age, both reach their maximum height. इसको समझाई दिए। The rate of growth in height varies in different individuals. जो height का growth होता है वो different individuals में vary करता है। Some may grow suddenly at puberty and then slow down, while others may grow gradually. कह रहे कि कुछ लोगों का हाइट प्यूबर्टी के समय अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाता है और बाद में फिर धीरे बढ़ता है, जबकि कुछ लोगों का हाइट शुरू से लेकर के लास्ट तक धीरे ही बढ़ता है। All parts of the body do not grow at the same rate. बॉडी का सभी पार्ट्स सेम रेट से नहीं बढ़ता है। Height of an individual is more or less similar to that of some family members. किसी भी इंडिविजुअल्स का हाइट ज्यादा या कम उसके किसी फैमिली मेंबर से मिलता है। This is because height depends on the gene inherited from parents. इसका कारण यह है कि हाइट जीन पर डिपेंड करता है। It is, however, very important to eat the right kind of food during these growing years. This helps the bones, muscles, and other parts of the body get adequate nourishment for growth. It means जबकि इस growing age में proper diet का होना बहुत जरूरी होता है। यह बॉडी के बोन्स, मसल्स और दूसरे पार्ट्स के नरिशमेंट में भी हेल्प करता है। Now next topic, change in body shape. The muscles of the boy grows more prominently than in the girls. Thus, changes occurring in adolescent boys and girls are different. कह रहा है कि adolescence age में boys का जो muscles होता है बहुत ही ज्यादा prominent grow करता है, लेकिन girls का कम grow करता है और इसीलिए boys and girls दोनों का adolescence period में changes अलग होता है। Now next topic, voice change. At puberty, the voice box or the larynx begins to grow. Puberty के एज में voice box या larynx का ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। Boys develop larger voice boxes. Boys का voice box larger होता है। The growing voice box in boys can be seen as a protruding part of the throat, called Adam's apple. कह रहे कि बॉयज में वॉइस बॉक्स गले में ऊपरी पार्ट की तरह दिखाई देता है, जिसको एडम्स एप्पल कहा जाता है। इन गर्ल्स द लैरिंक्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। कह रहे कि गर्ल्स में लैरिंक्स बहुत कम दिखाई देता है क्योंकि यह गर्ल्स में छोटा होता है। जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस whereas boys have a deep voice. In adolescent boys, sometimes the muscles of the growing voice go out of control and voice becomes hoarse. This state may remain for a few days or weeks, after which the voice becomes normal. कह रहे कि जनरली गर्ल्स का वॉइस का पिच ज्यादा होता है और बॉयज का कम होता है। एडोलसेंट बॉयज का वॉइस बॉक्स कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसकी आवाज भी कर्कश हो जाती है। ऐसा कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए होता है, फिर बाद में वो नॉर्मल हो जाता है। Now next topic, increased activity of sweat and sebaceous gland. During puberty, the secretion of sweat glands and sebaceous glands or oil glands increases. Puberty के समय sweat gland और sebaceous gland का secretion ज्यादा हो जाता है। Many young people get acne and pimples on the face at this time because of increased activity of these glands in the skin. काफी सारे लोगों के चेहरे पर एक्ने या पिंपल्स निकल आते हैं क्योंकि इन ग्लैंड्स का एक्टिविटी उनके चेहरे में बढ़ जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. At puberty, male sex organs like the testes and penis develop completely. The testes also begins to produce sperms. प्यूबर्टी के समय मेल सेक्स ऑर्गन्स जैसे कि टेस्टिस और पेनिस डेवलप हो जाता है। टेस्टिस स्पर्म्स भी प्रोड्यूस करने लगता है। इन गर्ल्स द ओवरीज enlarge and egg begin to mature. Also ovaries start releasing mature egg. गर्ल्स में ओवरीज बड़ा हो जाता है और एग्स मेच्योर होने लगता है, साथ ही ओवरीज मेच्योर एग को रिलीज करने लगता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक,
reaching mental, intellectual, and emotional maturity. Adolescence is also a period of change in a person's way of thinking. Adolescents are more independent than before and are also self-conscious. Intellectual development takes place and they tend to spend considerable time thinking. In fact, it is often the time in one's life when the brain has greatest capacity for learning. Sometimes, however, an adolescent may feel insecure while trying to adjust to the changes in the body and mind. But as adolescent learners, you should know that there is no reason to feel insecure. These changes are a natural part of the growing up. इसमें कह रहा है कि एडोलेसेंट पीरियड में पर्सन के थिंकिंग वे में चेंज होता है. एडोलेसेंट पहले से ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाता है और कॉन्शियस हो जाता है. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होता है जिससे अधिकतर टाइम वो सोचने में खत्म कर देता है. इनफैक्ट अक्सर ये भी देखा गया है कि इस एज में लर्निंग कैपेसिटी ज्यादा बढ़ जाती है, जबकि कभी कभी एडोलेसेंस बिना किसी रीजन के अपने आप को इनसिक्योर फील करने लगता है. ये सब पार्ट ग्रोइंग एज का नेचुरल पार्ट है. Now next topic, secondary sexual characters. You have learned in chapter 9 that testes and ovaries are the reproductive organs. They produce the gametes, that is sperms and ova. कह रहे कि आप chapter 9 में पढ़ चुके हैं कि testes और ovaries जो होता है वो reproductive organs होता है और ये gametes जैसे कि sperms और ova को produce करता है. In girls, breast begins to develop at puberty. Girls में puberty के समय उसके breast का development start हो जाता है. And boys begins to grow facial hair, that is mustaches and beard. और boys में facial hair का development start हो जाता है जैसे कि mustaches and beard. As these features help to distinguish the male from the female, they are called secondary sexual characters. ये characters चूंकि male और female को distinguish करता है इसलिए इसे secondary sexual characters कहा जाता है. Boys also develop hair on their chest और boys में chest के ऊपर hair का भी development होने लगता है. In both boys and girls, hair grows under the arms and in the region above the thighs or pubic region. कह रहा है कि boys और girls दोनों में ही अंडर आर्म्स में हेयर्स का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और थाइस या pubic region में भी हेयर्स का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है. The changes which occur at adolescent are controlled by hormones. जो changes adolescence के समय होता है वो हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है. Hormones are chemical substances. Hormones chemical substances होता है. These are secretions from endocrine glands और endocrine system. और ये सब endocrine glands से secrete होता है या फिर endocrine system से secrete होता है. The male hormone or testosterone begins to release by the testes at the onset of puberty. Male hormone या testosterone puberty के समय testes से release होना start हो जाता है. Once puberty is reached in the girls, ovaries begins to produce the female hormones or estrogen. जैसे ही girls puberty stage में जाती है तो उसके hormones यानी कि estrogen ovaries से release होना start हो जाता है, which makes the breast develop, जिसकी वजह से उसका breast develop करता है. Milk secreting glands or mammary glands develop inside the breast. Milk secreting glands या mammary glands breast के अंदर का development करता है. The production of these hormones is under the control of another hormone secreted from an endocrine gland called pituitary gland. इन hormones का control किसी दूसरे hormones के through होता है जो endocrine gland से secrete होता है और इसे pituitary gland कहा जाता है. Now next topic. Role of hormones in initiating reproductive function. Endocrine glands release hormones into the bloodstream to reach a particular body part called target site. Endocrine gland particular body part के blood stream में hormones को secrete करता है जिसे target site कहा जाता है. The target site responds to the hormone. Target site hormones को respond करता है. There are many endocrine gland or ductless gland in the body. बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स या डक्टस ग्लैंड्स बॉडी में होते हैं. द टेस्टिस एंड ओवरीज सिक्रीट सेक्स हार्मोन्स. टेस्टिस और ओवरीज जो है वो सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करता है. यू हैव जस्ट लर्न दैट दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. आपने अभी अभी पढ़ा है कि ये हार्मोन्स मेल और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. फर्दर द सेक्स क्रोमोसोम्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड्स. और इसके बाद सेक्स हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा कंट्रोल होता है. द पिट्यूटरी सीक्रेट्स मेनी हार्मोन्स.
one of which make ova mature in the ovaries and sperms form in the testes. पिट्यूटरी बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, जिसमें से एक ओवा को ओवरी में मेच्योर करता है और दूसरा स्पर्म्स को टेस्टिस में मेच्योर करता है. Now next topic, reproductive phase of life in humans. The capacity for maturation and production of gametes lasts for a much longer time in males than in females. Gametes के maturation और production के लिए मेल में फीमेल की अपेक्षा ज्यादा टाइम लगता है. In females, the reproductive phase of life begins at puberty, like 10 to 12 years of age, and generally lasts till the age of approximately 45 to 50 years. The ova begins to mature with the onset of puberty. One ovum matures and is released by one of the ovaries once in about 28 to 30 days. कह रहे कि फीमेल में रिप्रोडक्टिव फेज प्यूबर्टी एज यानी कि 10 ईयर्स से लेकर के 12 ईयर्स के एज में स्टार्ट होता है और जनरली 45 ईयर्स से लेकर के 50 ईयर्स तक खत्म हो जाता है. ओवा प्यूबर्टी एज में मेच्योर होना स्टार्ट होता है. एक ओवा लगभग 28 से 30 डेज में मेच्योर होता है और किसी एक ओवरी से रिलीज होता है. During this period, the wall of the uterus becomes thick, so as to receive the egg. In case it is fertilized and begins to develop, this result in pregnancy. कह रहे कि इस पीरियड में यूट्रस का वॉल मोटा हो जाता है जिससे वो एग को रिसीव कर पाए. यदि एग फर्टिलाइज हो जाता है तो उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और इसे प्रेगनेंसी कहा जाता है. If fertilization does not occur, the released egg and the thickening lining of uterus along with its blood vessels are set off. This causes bleeding in women, which is called menstruation. कह रहा है कि यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो रिलीज्ड एग यूट्रस के मोटे लाइनिंग और ब्लड वेसल्स के साथ बाहर निकल जाता है जिससे वुमेन में ब्लीडिंग होता है और इस प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है. Menstruation occurs once in about 28 to 30 days. Menstruation 28 से 30 days के बीच में एक बार होता है. The first menstrual flow begins at puberty and is termed menarche. पहला menstruation flow जो होता है puberty के समय स्टार्ट होता है और इसे menarche कहा जाता है. At 45 to 50 years of age, the menstrual cycle stops. Stoppage of menstruation is termed menopause. कह रहा है कि 45 years से लेकर के 50 years के एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो रुक जाता है और इस रुके हुए मेंस्ट्रुएशन को मेनोपॉज कहा जाता है. इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल मे बी इरेगुलर. इट टेक्स सम टाइम टू बिकम रेगुलर. कह रहा है कि स्टार्टिंग में मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो सकता है और कुछ देर के बाद फिर ये रेगुलर हो जाता है. मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स. मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होता है. द साइकिल इंक्लूड्स द मैच्योरेशन ऑफ द एग, its release, thickening of uterine wall, and its breakdown if pregnancy does not occur. In case the egg is fertilized, it begins to divide and then gets embedded in the uterus for further development. इसमें कह रहा है कि इस साइकिल में एग का मैच्योरेशन, इसका रिलीज होना और यूटरस के वॉल का मोटा होना, साथ में यदि प्रेगनेंसी नहीं होता है तो उसका ब्रेकडाउन हो जाना, ये सब इंक्लूड है. यदि फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइज एग का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और फर्दर डेवलपमेंट के लिए ये यूट्रस के वॉल में चिपक जाता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड. ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल्स. हर एक ह्यूमन बींग्स के 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनके सेल्स के न्यूक्लियाई में. 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम्स नेम्ड X and Y. उनमें से 2 क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जिसका नाम X क्रोमोसोम होता है और Y क्रोमोसोम होता है. A female has 2 X chromosomes while a male has 1 X and 1 Y chromosomes. एक फीमेल में 2 X क्रोमोसोम्स होते हैं जबकि मेल में एक X क्रोमोसोम और एक Y क्रोमोसोम होता है. The gametes, egg or sperm, have only one set of chromosomes. Gametes one set of chromosomes होता है, चाहे वो egg हो चाहे वो sperm हो. The unfertilized egg always has 1 X chromosome. Unfertilized egg में हमेशा एक X chromosome होता है. But sperms are of 2 kinds. One kind has an X chromosome and the other kind has a Y chromosome. लेकिन sperm में 2 तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एक X क्रोमोसोम होता है और दूसरा Y क्रोमोसोम होता है. अब बेबी का सेक्स किस तरह से डिटरमाइन होता है उसको मैं डायरेक्ट डायग्राम से समझाती हूँ. यहाँ जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये स्पर्म का डायग्राम है.
ये Y क्रोमोजोम है और ये X क्रोमोजोम है। तो जब मेल का Y क्रोमोजोम फीमेल के X क्रोमोजोम के साथ मिलता है और बेबी होता है तो वो बेबी बॉय होता है। लेकिन जब मेल का X क्रोमोजोम फीमेल के X क्रोमोजोम के साथ मिलता है और बेबी होता है तो वो बेबी गर्ल होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। इस टॉपिक को भी मैं डायरेक्ट डायग्राम से समझाती हूँ। यहाँ इस पोजीशन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है। नेक्स्ट यहाँ पर थायराइड ग्लैंड होता है जो थायरोक्सिन हार्मोन्स को रिलीज करता है। नेक्स्ट ये एड्रिनल ग्लैंड है जो एड्रेनालिन हार्मोन्स को रिलीज करता है। नेक्स्ट यहाँ पैंक्रियाज है जो इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट करता है। नेक्स्ट यहाँ ओवरी है जो एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करता है। नेक्स्ट लास्ट में ये मेल का पार्ट है, ये टेस्टिस है और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। Bujo and Paheli had once visited their aunt who was a doctor and remembered that a boy named Kaka had a very big and bulging throat. बुजो और पहली एक बार अपने आंटी के घर गया जो डॉक्टर थी और उसे एक लड़के के बारे में याद है जिसका नाम काका था, उसका थ्रोट बहुत बड़ा था। Their aunt had told them that Kaka was suffering from goiter, a disease of the thyroid gland. उनके आंटी ने उनसे कहा था कि काका गोइटर डिजीज से सफर कर रहा है। Kaka's thyroid gland was not producing the hormone thyroxine. काका का जो थायराइड ग्लैंड था वो थायरोक्सिन हार्मोन्स को प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। Their aunt also told them that their uncle was suffering from diabetes because his pancreas was not producing the hormones insulin in sufficient quantities. उनके आंटी ने उनसे कहा था उनके अंकल डायबिटीज डिजीज से सफर कर रहे हैं क्योंकि अंकल का पैनक्रियाज सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा। Adrenal glands secrete hormones which maintain the correct salt balance in the blood. Adrenal gland जिस हार्मोन को सिक्रीट करता है उससे बॉडी में सॉल्ट का बैलेंस होता है। Adrenals also produce the hormone adrenaline. It helps the body to adjust to stress when one is very angry, embarrassed or worried. Adrenal gland दूसरे हार्मोन्स को भी सिक्रीट करता है जिसका नाम है एड्रेनालिन और ये बॉडी को स्ट्रेस से एडजस्ट करता है जब कोई पर्सन बहुत गुस्से में होता है या एम्बैरेस्ड होता है या दुखी होता है। Thyroid and adrenal secrete their hormones when they receive order from the pituitary through its hormones. Pituitary also secretes growth hormones which is necessary for the normal growth of a person. थायराइड और एड्रिनल जब पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ से ऑर्डर होता है तब वो हार्मोन को सिक्रीट करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड्स ग्रोथ हार्मोन्स को भी सिक्रीट करता है जो किसी भी पर्सन के नॉर्मल ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ एंड द फ्रॉग। आप सिल्क मॉथ और फ्रॉग के लाइफ हिस्ट्री को पढ़ चुके हैं। द कैटरपिलर हैज टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम एन एडल्ट मॉथ। कैटरपिलर बहुत सारे स्टेजेस को पास करता है जिसके बाद यह एडल्ट बनता है। सिमिलरली द टैडपोल पासेस थ्रू सर्टेन स्टेजेस टू बिकम अ फ्रॉग। इसी तरह से टैडपोल कुछ स्टेज को पास करके फ्रॉग बनता है। This changes from larva to adult is called metamorphosis और इस तरह के चेंज जिसमें लार्वा से एडल्ट बनता है मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन्स। मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट में इंसेक्ट हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। इन अ फ्रॉग इट इज कंट्रोल्ड बाय थायरोक्सिन और फ्रॉग में यह थायरोक्सिन से कंट्रोल होता है। द हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायराइड जो कि थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। थायरोक्सिन का प्रोडक्शन वाटर में आयोडीन के प्रेजेंस से होता है। If the water in which the tadpoles are growing does not contain sufficient iodine, the tadpoles cannot become adults. जिस वाटर में tadpoles ग्रो कर रहा हो उसमें यदि sufficient amount में आयोडीन नहीं होगा तो वो tadpoles adult नहीं बन पाता है। Now next and last topic, reproductive health. इस टॉपिक को मैं पॉइंट वाइज समझा देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट, न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलेसेंट्स। पहला पॉइंट है एडोलेसेंट्स के लिए न्यूट्रिशनल नीड्स किस तरह का होना चाहिए। तो एडोलेसेंट्स एज वाले किसी भी बच्चे को न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और उसे अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए और इस तरह के जो डाइट होते हैं उसे कम से कम लेना चाहिए, लाइक चिप्स एंड पैक्ड और थिन स्नैक्स। इस तरह के डाइट जिसमें न्यूट्रिएंट्स कम हो वो उसे नहीं लेना चाहिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, पर्सनल हाइजीन। एडोलेसेंस एज वाले बच्चे को पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, यानी कि उसे साफ सफाई का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। डेली उसे स्नान करना चाहिए, अपने कपड़े बदलने चाहिए
और जहां जिस जगह पर भी वो रह रहा है, जिस रूम में रह रहा है, उसकी भी सफाई का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, फिजिकल एक्सरसाइज। एडोलेसेंस एज वाले बच्चे को फिजिकल एक्सरसाइज भी डेली करना चाहिए, जैसे वॉकिंग, प्लेइंग या पर्टिकुलर फिजिकल एक्सरसाइज, ये सब जरूर करना चाहिए। नाउ लास्ट टॉपिक, से नो टू ड्रग्स। एडोलेसेंस एज वाले बच्चे को ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स उसके हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है। If anybody suggests that you will get relief if you take some drugs, just say no unless prescribed by the doctor. क्या कर रहा है कि यदि कोई आपको सजेस्ट करता है कि आप ड्रग्स ले लो जिससे आपका टेंशन खत्म हो जाएगा या आप रिलीफ फील करोगे, तो आपको डायरेक्ट ना बोलना चाहिए, और ड्रग्स तभी लेना चाहिए जब कोई डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है। Drugs are addictive. If you take them once, you feel like taking them again and again. They harm the body in the long run. They ruin health and happiness. ड्रग्स जो होता है वो एडिक्टिव होता है। यदि एक बार आप किसी ड्रग को ले लेते हो तो आपको बार बार लेने का मन करता है, और लॉन्ग रन में ये आपके बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, और यह आपके हेल्थ और आपकी खुशी को खत्म कर देता है। नाउ चैप्टर इज ओवर, दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।